Sushant. Sushant, welcome and thank you very much for taking out time. Just to share with you, this is my college alumni. We have a strong alumni of 6,000 people, and we have a learners group where there are around 100 plus people and more are joining. And we started this journey from today. So you are the first speaker, and first speaker will always go longer into memories. Guys, Sushant is a very, very passionate guy. Just to give you a little about his background, he was working successfully in corporate world. He was vice president, heading operations in one of the MNC, and then his passion about kids, his passion about teaching, his passion about parenting. That I say motivated him to leave that cushy corporate life which he was, and when a very, very, very powerful position. And he decided to pursue his dream. And for the last now 12 years, almost 12 to 13 years, he created an organization called Parvarish. And his two focus are, one is about parenting and second is about teaching. So he works in the area of teachers. He trains teachers how they can become better. And he also trains parents how they can be better parents. Not taking much of the time, Sushant, the floor is to you. All the best. Thanks, Asim. Thanks for this. And by the way, these are all engineers, right? Yeah. So you can add one more. By education, I'm a metallurgical engineer. Started my career with Steel Authority of India. So I was on the shop floor making steel. I've operated the electric arc furnace with my own hands. So वहाँ की journey start हुई थी. बहुत साल हो गए, अब तो याद भी नहीं है. 1990 is when I joined Steel Authority of India. So it's been 31 years. It was great fun. So my first question to you is, when do you think does your parenting end? When do you think does your parenting will end? खत्म कब होगी? धीरज says never, okay, but never का मतलब धीरज कभी तो मतलब. Anybody else? Actually, you were saying something? आप unmute कर रहे थे. Parenting won't end, sir. Won't end. Okay, so मैं ये कहता हूँ कि यार parenting ना हमारे खत्म होने के बाद भी नहीं खत्म होगी. You get that? चाहे हम parents नहीं हैं, parents. Even after we leave Earth, our parenting will not get over, because our children will look at us and think about us कि यार अगर पापा होते या मम्मी होती इस situation में तो वो क्या करती. So, and I'm sure each one of us also looks like that. Yeah, what would have my dad done in this situation? What he would have been doing? And just the thought कि वो हैं और मेरे साथ हैं brings a lot of power automatically, right? So your parenting, as you said, will never go on, even after our lifetime. So कभी खत्म नहीं होगी. I'm 52 right now. My dad is 76. अभी एक second के लिए जब मैंने mute किया, dad still worries about me. He still says कि यार ये करना ये नहीं करना. So it's never going to end. So वो end कभी नहीं आएगा. So wherever you are in your parenting journey, I can give you one promise. In the next 1.5 hours, it will not remain the same. That's a promise. कि वो इतनी alter हो जाएगी, इतनी ज़्यादा alter हो जाएगी. Even if your child is 2-year-old or 20-year-old or 30-year-old, I don't know. I think यहाँ पे सब age range होगा, right? So what's the eldest parent, like eldest child's parent यहाँ पे? What's the eldest? 20 के कोई हैं जिनके बच्चे 20 साल के हो चुके हैं? I think Asim, your child is 20, right? आप mute को, Asim, you're on mute. There are people जिनके बच्चों की शादी हो चुकी है. अच्छा, शादी हो चुकी है. अच्छा, दादा में बैठे हैं आप. तो सबसे बड़ा बच्चा किसका है? What age? 30 भी है? 24. Others 24, one मैं बोली लगा रहा हूँ. 25. Satish 25. Satish 25, 1, 25, 2. 25. So 25 is the maximum, Satish. Okay, great. So, but I can promise you, Satish, from you to Avishkar, I think you look like a young parent, right? How old is your child? It's 11 years. Okay, so 11 से नीचे भी कम है यहाँ पे लोग. So I can promise you one thing: whether your child is 11 or 25 does not matter. Today's session will make a difference, a huge difference in your life. That's a promise. So मेरा एक छोटा सा request है, keep your videos on, keep interacting for the next 1.5 hours. We will keep the last 15-20 minutes for any kind of a question on parenting. So पहले I'll want to take you through a journey, but it will be like a journey. So अगर possible है तो my request is just keep your phone on silent and keep it upside down.
क्योंकि वो नोटिफिकेशंस भी आती रहेंगी तो ना दिमाग वहां जाएगा. सो 1.5 घंटा ना मस्ती करते हैं. लेट्स बी on with your own friends, with your own engineering colleagues. I'll say engineering colleagues because then I'll include myself in it. ठीक है, करें. Let's begin the journey. Everybody ready for that fun time and exciting time together? Yes. Yep. Yes, Sushant, we are ready. Okay, great. तो ना मैं एक छोटा सा presentation साथ में share करूँगा. So I wanted to be with it all the time and बात करते चलेंगे. So मैंने कुछ words अभी सामने लिखने वाला हूँ. Is it so? Should I keep mixing Hindi and English or only English? What do you prefer? Mixer is okay. Mixer All is okay. understand both the languages. बीच में हिंदी चलेगी, सबको हिंदी समझ में आती है ना. और अगर नहीं आती है तो बोल देना. Not a problem. I'll shift again. I'll talk again. No, it's okay, Sushant. I think everybody understands both the languages. Perfect. So these are 4 words which I want to place in front of you. Okay? And don't look at these 4 words as words. Start relating to that. I am talking about your child. Your child. I'm not talking about anybody else. बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, आप बच्चे की बात कर रहा हूँ. So your child being happy. And when I'm talking about happiness, I am differentiating between happiness and pleasure. हम ना ये दोनों चीजें collapse कर देते हैं. तो जब बच्चा कोई जंक फूड खा रहा है या कोई मस्ती कर रहा है या टीवी देख रहा है या कोई गेमिंग कर रहा है, वो हैप्पी हो जाता है. दैट्स नॉट हैप्पीनेस, दैट्स प्लेजर. वो जैसे ही इवेंट खत्म होता है ना, हैप्पीनेस खत्म हो जाती है. सो वो खुशी है, वो आनंद नहीं है. मैं आनंद की बात कर रहा हूँ, मैं हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ. हैप्पीनेस इज ऑल्सो नॉट द एब्सेंस ऑफ सैडनेस. वी ऑल नो लाइफ कैनॉट हैपन ओनली हैप्पी. लाइफ इज इम्पॉसिबल. लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी, सैडनेस आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, एंगर आएगा. How can you and your children take all that along? So happiness is not the absence of that. Happiness is the ability to take it along in your life. So your child being happy, they being healthy. And when we say healthy, it's physically, mentally, emotionally, socially, spiritually, whichever way you want. They're healthy in their life. They are successful. And our definition of success is that they are doing what they really want to do in their life. They're engaged in it. They're enjoying it. They're producing result in it. They're responsible for it. Yeah, this is what I'm doing in my life. It could be a 2-year-old in a preschool or a 25-year-old or a 28-year-old in a business or a job. That they are engaged, they're happy, they're involved, and they're producing results in the area they want to. And they are secure physically, mentally, emotionally, socially, spiritually, financially, whichever way you want. So just take 30 seconds and get present to the fact that your child is happy, healthy, successful and secure. इसके बाद क्या चाहिए as a parent? You know, if you can achieve this, I think this is amazing as a parent. Absolutely. If any child, my child is happy, healthy, successful and secure, as I want in my life. Absolutely. और ये कर लिया तो अपने आप को तो मतलब बोलो, ऐसे बोलोगे ना, भाई गुड जॉब डन. जॉब डन, A1. तो गाइस ये 4 वर्ड्स ना ऐसे नहीं आए हैं. तो लास्ट 20 years, my first session was in 2015, so it's been almost 16 years. In 16 years we have asked this question to all parents. यार सत्यवीर को म्यूट कर दोगे या मुझे एक काम करो, होस्टिंग राइट्स दे दो, so I can keep muting people, otherwise this disturbance will keep coming. जहां पे भी disturbance आ रही हो ना, scene mute कर लेना यार. Thanks. So these words are not just 4 words, okay? This is the question which lots of parents across the world have answered. क्या चाहिए क्या बच्चों के लिए? So we had thousands of answers, and this is the juice of all those. Like all those thousands of answers fit into these 4 words, and this is what Parvarish is, not as an organization, but this is what as a parent we want. यार बच्चों को बड़ा करना ये चाहिए, and this is what the organization Parvarish is all about. That we partner parents to make this happen. Beyond that, there's one more thing I want you to experience. Okay, so I will not just quickly tell you, we've done this across various countries, from the Bhil community, the tribals of the Bhil community, to an American, Japanese, and Chinese parents have done this, and it's based on very high level of research. This is 20 years of research in the area of child development. मैं इसके अंदर नहीं जा रहा, आपको नहीं बोर करूंगा. इंडस्ट्री रिकग्निशन से भी नहीं बोर करूंगा, बाद में कभी आपको मेरे वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना. So it's been 20 years of this work. One more experience which I want to share with you, जहां पे आपकी पेरेंटिंग जर्नी शुरू हुई थी. So एक 30 सेकंड्स के लिए ना सब आप लोग अपनी आंखें बंद कर लो.
if you just can close your eyes for 30 seconds and get into your mind the moment when you held your firstborn in your arms for the very first time. You could be in a hospital, in a nursing home. आपने अपने पहले बच्चे को पहली बार नर्स ने या डॉक्टर ने पकड़ाया होगा और आपने पहली बार हाथ में उठाया था. उसके छोटे छोटे पैर, वो छोटे छोटे हाथ, वो हार्ट बीट भी सुनाई दे रही थी. कैसा लग रहा था वो पहली बार जब बच्चे को उठाया था अपनी गोद में? How was that experience? You can open your eyes and share. How was that experience? Anybody? I was kind of scared at that time. मुझे ऐसे लग रहा था कि भी I may not end up hurting him. कहीं कुछ हो ना जाए, right? क्या मैं इसको वो दे पाऊंगा, right? Right, right. You're saying it and I have goosebumps over my body. Anybody else? Same with me. Yeah, so My child was too small. मतलब it was very difficult for me to handle. यार ये कहीं कभी right में slip ना हो जाए, left ना हो जाए. तो I remember मैंने उसको भी बोला था नर्स को कि भैया आप ही पकड़ो इसको, थोड़ा बड़ा करके देना. वो ऐसा नहीं लग रहा था अविनाश की ना, जो मेरा दिल मतलब my heart, मैंने ना अपना हार्ट पकड़ा हुआ है और वो इतना डेलिकेट सा है और यार कुछ हो ना जाए, इसको कुछ ना हो जाए. Exactly. Right? It's your heart outside your body. Yes. Anybody else? yes. So same for me, like Avishkar and Vivek, same thing, you know. इसको कुछ हो ना जाए भाई, इसको थोड़ा दूर ही रखो, कहीं हाथ उंगली ना दबा दो, कहीं हाथ ही ना कुछ हो जाए. वेरी डेलिकेट थिंग है ना. आपको भी ऐसा लग रहा था कि यार मेरे से ही कुछ ना लग जाए, राइट? हाँ, मतलब इसको भैया बचा दूर ही रखो. फिर आफ्टर 3-4 दिन या व्हाट अ फ्यू आवर थोड़ी हिम्मत करी, मैं कहा यार चलो कोशिश तो करो, ये लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ. सुभाष कैसा लगा उठा के? क्या फीलिंग क्या आ रही थी? एक्सपीरियंस क्या रहा था? No, Describe to be honest, scary at that time, you know, कि भाई more of physical damage to the child. That was the feeling. Yeah. For me, I had tears in my eyes. So, you know, the moment I held him, he came out and, you know, I could not hold myself, you know. Absolutely. I don't know that fears of happiness or what, but I had tears. Describable नहीं है actually, right? You can't put a word to it. It's a miracle. उस वक्त ये लगा था ना कि I don't know how many women are there on the call, but just out of labor, just out of the pain of delivering, I think वो moment में सारी pain एक second के लिए गायब हो गई थी. क्या वो आ गया हाथ में और it's a miracle. It's like an undescribable situation, right? So any women on the group who would want to just talk about it, and I like it. Yeah, normally मेरी parenting programs में women ज़्यादा होती हैं. So we're talking about mothers more than the fathers, but great. So anyone would want to talk about from there कि यार वो experience of that fulfillment, that satisfaction, that miracle right there in your arms. I asked many of them to join with their spouses because it was primarily a male dominant college. तो क्या बोलूं? मुझे क्या कुछ याद ही नहीं, मैं बेहोश थी. Nitya, anything? You're all quiet. Nitya is not a parent. अच्छा, Nitya is not a parent. She is my team member helping me with this. Okay, sorry. Myself, Mrs. Satyavir Yadav. क्या मिता? सर एक्चुअली जितना भी पेन है 9 मंथ का, लेडीज के पास जब बेबी दिख ही जाता है ना, तो वो सब कुछ भूल जाती है कि पिछले 9 मंथ में क्या हुआ. एंड एवरीथिंग. बस उसका अंदाजा नहीं लगा सकते उस टाइम पे. या सत्यवीर ना, उसका आप डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते. लेकिन एक चीज देख सकते हो, जैसे हमने इस बारे में बात करी 2 मिनट में, एक एक्सपीरियंस वापस आ गया, एक वो फील, एक वो टच. यस सर, पीछे का सब एकदम से जैसे आंखों के सामने आ गया अभी. तो मेरा ना दो चीजें बोलूंगा. एक, the other thing which we want for our parents and why जो असीम कह रहा था कि I'm so passionate about it, I said यार that is what the real essence of parenting is, वो experience. और उस दिन के बाद वो experience कहीं गायब हो गया. So can we get that experience every day of our life? The answer is yes. My son is 21, my daughter is 15. Do we get the same experience every day? The answer is yes. मतलब आज भी सुबह जब मैं ऑफिस में घुसा हूँ तो वो दोनों सो रहे थे. आज सैटरडे था, जाके उनको एक सर पे हाथ फेरना, उनको एक करना, नीचे आना, वो एक्सपीरियंस आज तक वैसा ही है. बट जैसे आपने बोला, उस दिन जब ये बच्चा हमारे हाथ में था, सत्यवीर एंड सुभाष एंड एवरीबॉडी सेइंग दैट, एक डर सा लगा था. डर स्टार्ट हुआ था कि यार हाउ कैन आई कीप देम सेफ, हाउ कैन आई कीप देम प्रोटेक्टेड.
मतलब ऐसे लग रहा था जैसे सुभाष बोल रहे हैं यार मेरे हाथ से कुछ ना हो जाए तो मेरे से ही दूर रखे, मतलब वो इतना प्यारा है कि मैं अपने से ही कुछ ना कर दूं, मेरे हाथ से ही कुछ ना हो जाए. So it's like that became our primary motive. Like how can we make sure they are protected, they are safe, and that became one of our primary goal as a parent. वो बाहर जा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो एक ऐसे लग रहा था कि यार वो बस मेरी नजरों से बाहर ना जाए. एग्जैक्टली मतलब मैं अभी भी बताऊं तो रात को अगर 10 बजे मैं घर नहीं पहुंचता हूं तो मेरे डैड अभी भी मुझे फोन करके पूछते हैं कहाँ है, क्या हुआ, सब ठीक है. मतलब it will never end. The second thing we all promised to ourselves that day was I want to keep my child happy. थोड़ी सी तकलीफ में होता है, वो बोलता है मम्मी आज अभी मूड ठीक नहीं है या आज सैड लग रहा है, हम कुछ भी करते हैं वो ठीक करने के लिए. हम उनके लिए बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, हम उनके लिए बेस्ट स्कूल पे ले जाएंगे, चाहे हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते. वी विल मूव आवर हाउसेस टू मेक श्योर दैट दे आर हैप्पी. We'll do all of that to make sure that our children are happy all the time. That becomes the second thing. And I know a lot of women leave up their job, leave up their careers, specifically women in our country. इनको लगता है यार ये काम तो मेरा ही है, तो नौकरियां छोड़ दी, career छोड़ दी, क्या नहीं, I have to be there, make sure I provide everything for the child. And then we want to get it right all the time. Just keep, so as I'm talking about it, just keep observing yourself. यार सब कुछ ना ठीक करना है, ये गलत नहीं होना चाहिए इसके साथ. बिकॉज देयर आर टाइम्स ऑफ आवर ओन एक्सपीरियंस. हम अपने पेरेंटिंग के एक्सपीरियंस में चले जाते हैं, यहाँ पे हमारे साथ भी कभी मम्मी ने कुछ करा या पापा ने कुछ किया जो हमें अच्छा नहीं लगा, जो पसंद नहीं आया, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए. ये चीज के लिए ना मैं बहुत तड़पाता, मैं अपने बच्चे को नहीं तड़पाऊंगा, मैं उसको ये भी दे दूंगा, उसको मैं यहाँ भी ले जाऊंगा. सो ऑल दैट गेटिंग इट राइट became a very very critical element again of our parenting journey. And the last thing is, last मैं word ले रहा हूँ, it's not the last thing, is we want our children to be the best. वो पढ़ाई कर रहा है तो उसमें भी अच्छा लगे, वो ये कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, वो किसमें, और मैं ना बेस्ट पेरेंट बन जाऊं, और मैं ना मतलब कोई कमी ना छूट जाए, ना वहां से ना इस साइड से. Yes and no? Can you all relate to this whole journey, that how our entire parenting construct came into being? कि हम ये 4-5 चीजों के ऊपर ना हमारे पूरा फोकस और वही जर्नी चलती रही है, चाहे आपका बच्चा 2 साल का या 15 साल का या 20 साल का है. Even I'm sure Satish was saying his son is 25. Even today, I'm sure all these elements will be behind him, right, Satish? ये elements अभी भी दिमाग में चल रहे हैं और उन्हीं से वहीं से parenting आ रही है. And by the way, one question which I've heard every parent ask me for the last 13 years, यार हमारे parents ने तो कभी parenting सीखी नहीं, वो तो कभी सेशन में बैठे नहीं है. So why do we have to get into something like this? What is the point? And we have turned out pretty well. जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, where we are today, so it's a great jump. We are happy, we are more resourceful, financially, economically, we are far better from where our parents left us. We've done pretty neat. So जब उन्होंने नहीं सीखा और हमने अचीव कर लिया तो हमें क्या जरूरत है. और by the way, हमने ज्यादा तवज्जो दी है. We have spent more time, more resources in our parenting than I think our parents did. And that's a generic statement, may or may not be true for everybody. But if we look out, okay, in the real world, despite the best effort, despite us spending so much of time, energy, mind share into this, what is the reality out there? If we see the teenagers, if we see children out there, life में भी reality क्या है? Relationships में, what are you dealing with your children? Or what are your children dealing with in terms of relationships? Can somebody just share it out before I say it? In terms of relationship, what are your biggest issues, क्या दिख रहा है आसपास? Connections. Our children have thousands of friends and thousands of friends are virtual. Real friends बहुत कम दिख रहे हैं. Most of the parents are complaining है कि बच्चा मेरा ना friends नहीं बनाता है. आज इससे गुस्सा आया, टक unfriend. 1 सेकंड लगा, उड़ा दिया. जो रियल फ्रेंडशिप हमारे साथ होती थी, जो हमारे जमाने में जो होती थी, ये ग्रुप, मतलब this group must be what, 20, 25, 30 year old. Yeah. Asim. And my request is सिर्फ असीम बात नहीं करेगा यार, everybody else participate. सबने अपने. I'm just trying to trigger so that other can also participate. That's my job, as you know. This is your place, and I know in a group like this, in a big group, it's difficult to bring out your intimate stuff, but yeah, don't worry. I would say, Sushant, one of the conflict which kept on, which is still there and it's always there since my son turned a teenager,
was something what you are mentioning, that we always believed in going out, playing out, meeting outside. And today kids, they want to be on screen, they want to be on computer, they want to be on YouTube instead of going out and doing. They want to play video game, not on the ground. Right. So that was one relationship conflict which I always had with my son, that go out, play. That's one, which created tiff many times. Right. So I don't know what others can share. अगर आप देखो कि families में discussions, communications have reduced, right? Across the board. Marriages, divorce rates have all increased. वो friendship, वो connection, वो tenacity. If you remember the best friends of yours, I'm sure were the ones जिनके साथ सबसे ज्यादा झगड़ा भी हुआ था. हम झगड़ते थे, फिर वापस आते थे, फिर झगड़ते थे, फिर वापस आते थे. वो आज तक साथ हैं. आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं? झगड़ रहे हैं और फिर कह रहे हैं भाड़ में जा तू, कोई और नहीं और सही. शादी भी कर ली, चल तू नहीं पसंद, चल और सही. How does it matter? Let's move on. So there is a huge space there in terms of their physical health. And my request is bring your own life here. यार ये ना philosophical discussion नहीं है. You will get insights into what is not working and why is it all happening. My request would be bringing your life here in terms of उनकी physical health पे impact. How many of you feel that our parents were far stronger physically, emotionally than our children? इतना junk food जो खा रहे हैं, उसकी वजह से उनका stamina, उनकी immunity has actually reduced. Our parents can go out in the sun for a couple of hours, उनको कुछ नहीं होगा. लेकिन हमारे बच्चे अगर 2 घंटे धूप में चले जाएंगे तो वो गिर जाएंगे. So the physical impact on their health because of the food, because of the screens, because of whatever. What are you dealing with that? Anybody wants to just share? उस एरिया में भी बहुत उनको जबरदस्ती खिलाना, मतलब उनको खाना खिलाना भी उनको एक डील है. चिल्ड्रन से क्या मुझे ये खाना ये खाना ये खाना और ये नहीं खाना है. तो सब्जियां खिलाना, हरी सब्जियां खिलाना, health food becomes a huge task for us, even in teenagers. I'm not talking about small kids. Parenting का zoom हुआ है. Yes, no. Anybody? Yeah, I would like to share something very interesting which happened with me. तो हुआ ऐसा कि जब मेरा बच्चा बहुत छोटा था, so he is 8 years old now. तो ये बात है शायद when he was 2 or 3. So what I saw कि एक मैगजीन पड़ी थी रूम के अंदर, उसमें एक फोटो को देख करके वो उस फोटो पे ऐसे कर रहा था. So he was trying to expand that photo, उसको enlarge करने की कोशिश कर रहा था, and I was so worried at that time कि ये हो क्या रहा है. मतलब उसको लग रहा है ये स्क्रीन पे क्योंकि वो करता है ऐसे तो वो बड़ा हो जाता है, तो वो मैगजीन के अंदर भी वो फिजिकल फोटो को ऐसे बड़ा करने की कोशिश कर रहा था. Exactly. When I saw the screens written on the slide, तब मुझे रियलाइज हुआ कि this is a big problem और definitely there is a way which is needed to tackle this thing. Absolutely. By the way, आपने विवेक बोला स्क्रीन के बारे में. I'll tell you what, I was just sharing with a few parents अभी सेशन में एक स्कूल के साथ कर रहा था. Harvard Medical School has researched, and ये रिसर्च बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, that the damage of excessive screens on the brain is equal to the damage of cocaine. तो जो ड्रग्स का डैमेज है ब्रेन का और जो एक्सेसिव स्क्रीन्स का डैमेज है ब्रेन पे, जो अभी दिख नहीं रहा है, वो तो इंटरनल है, अभी वो दिखेंगे 4-5 साल बाद उसकी इम्पैक्ट, वो उस लेवल पे. एंड लास्ट 1.5 साल से वो जो स्क्रीन टाइम पहले 3-4 घंटे था, जो भी पहले भी एक्सेसिव था, वो 8-12 घंटे हो चुका है. बट इज इट अ प्रॉब्लम? द आंसर इज यस. इज देयर एन आंसर? वी हैव टू फाइंड एन आंसर, बिकॉज कोविड चला जाएगा और ये डैमेज छोड़ जाएगा तो और डिफिकल्ट हो जाएगा. So really, एक लेवल पे ये ना, it's not just your child, it's everybody. आप घर से बाहर निकलो, किसी फ्रेंड को फोन कर रहे हैं, मेरा बच्चा स्क्रीन पे है, सामने से आएगा, हाँ वो तो वही है. All of them are in the same boat. 99%. The exposure to alcohol, drugs, and sex, it's unbelievable. Unbelievable. अब बच्चे इंक्विजिटिव हैं. अब words like sex and condoms and anything is very natural now. किसी भी मूवी में चला होगा, नेटफ्लिक्स पे चला होगा, तो वहां तो गालियां भी नॉर्मल है, राइट? बहुत नॉर्मली ये बात कर रहे हैं सेक्स में. अब वो बच्चा देख रहा है तो उसके दिमाग में आएगा ये होता क्या है. जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा ये होता क्या है, वो कहाँ जाएगा? तो सवाल कहाँ जाएगा?
डॉक्टर गूगल गूगल पे. And just imagine Google पे वो सवाल जाएगा तो फिर कहाँ पहुंचेगा? And kids do not know how to handle it, and they do not know where to go to ask. कहाँ जाएंगे? आपके पास नहीं आएंगे, किसी और के पास आएंगे, फ्रेंड्स के पास चले जाएंगे. और फ्रेंड्स के पास आंसर कहाँ है? उनके पास भी नहीं है. The amount of exposure which has happened, which was happening earlier, has actually gone a few hundred times more in the last 1.5 years. The exposure to alcohol and drugs. I don't know if you know. Drugs. There is not a single school in our country, and I'm not saying कि school ये कर रहा है. मैं school का example ले रहा हूँ. School children. There is not one school in our country where weed is not there. Not one. From a government school to an IB school, I've seen it all. Not one. And class what? Class 6, 7. Children are getting into sexual acts at an age of 9, 10, 11. Not watching. Getting into that act. 9, 10. अभी ऐसे बिलीव होता है फिजिकली पॉसिबल नहीं है यार, ये तो बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं, बट है. So that is the kind of exposure happening, and they have no idea how to handle it. The stress element. 37% of our country, 37% of the adolescents of our country are under depression. 37%. Teenage suicide has grown 200% in the last 3 years. Teenage suicide. Performance के ऊपर, experience of life. So if you really look at it, यार एक साइड पे हम इतनी तवज्जो दे रहे हैं. We are doing in terms of what we are providing for them, the amount of mind share we providing. पूरा हम उनको ध्यान से रख रहे हैं. हमारे पास अब वो हमारे पेरेंट्स का जमाना नहीं है, जब दादा का जमाना नहीं है, जब 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, अब 1 या 2 होते हैं. और हमारा पूरा फोकस है उनके ऊपर, और हम समझा भी रहे हैं, और उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और उनको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं. एक साइड पे हम इतना कर रहे हैं, एक साइड पे रिजल्ट्स एकदम उल्टे हैं. So if you really ask me, when Asim said here, he left everything. When me and Monica got married about 27 years back, we never wanted to have children. That is where my personal journey as a parent started. हमने कहा यार, मैंने बाहर देख रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स परेशान है कि यार बच्चा सोता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, सुनता नहीं है. और पेरेंट और बच्चों से बात करो, कहते हैं यार पेरेंट 24 घंटे हमारे पीछे पड़े हुए हैं, खा ले, ये कर ले, उठ जा, अब ये कर, वो कर. तो we don't want to have kids. We don't want to get into that space. ये पूरा confusion, ये इस space में हमें जाना ही नहीं है. But as we say in India, if you get married, it's almost impossible not to have a kid. Even the dog on the road says, क्या problem है? And that too a Punjabi family, just so closely knit. We finally had Aman. So in the next 1 hour, I want to take you through a journey कि यार ये हो क्यों रहा है, और इसको आप reverse कैसे कर सकते हैं. And my request is don't look at it like a philosophy. Don't look at it कि यार बच्चों के लिए करना है, मुझे सिर्फ अपने 1 बच्चे 2 बच्चे whatever it is. And this is possible at every age. So even a parent of a 3-year-old can implement it, to a 30-year-old can implement what I'm going to talk about. So before I get into this whole कि करना कैसे है, I wanted to tell you ये होगा कैसे. So can you relate with this? Can you all relate कि यार ऐसा किसी एक लेवल पे, किसी एक नुआंस में हम सबके साथ हो रहा है? Yes, no. Each one of you could be there, right? और मैं यहाँ, और if you look at your family, if you look at your friend circle, you will see that almost everybody is dealing with something or the other like this, right? Yes, no, maybe. Are you there with me? And here I am saying कि 1 घंटे के अंदर ना आपको इसके solutions दिख जाएंगे सारे. Implement obviously 1 घंटे में नहीं हो पाएंगे. So we, as Asim was saying, we do a 2.5 month long program where this comes as a promise. यार ये तो हो जाएगा. No questions asked. Where we not just tell you, but we support implementation of it to make it happen. But आज मैं आपको ना वो nuggets दे दूंगा जहाँ से कैसे हो जाएगा. So something which seems impossible right now, because that's exactly which is happening with every child you see. And here I am saying in 1 hour you will get all the answers. कितनों को लग रहा है ये बकवास है, ये हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ये ज्ञान है, ये फिलॉसफी है. And be very very frank. I don't want you to be. We will let you know after 1 hour. So let me tell you होगा कैसे. Okay, once you see that, सुनना बहुत जरूरी है. तो ये कैसे होगा वो करके देखते हैं कि ना. I'll give you a small inkling into it. You heard of a word called myth? भ्रम, भ्रांति, सुना हुआ ये word? Yes.
ये होता क्या है? What is भ्रम? What is भ्रांति? What is myth? होता क्या है? Anybody? What is a myth? This seems to be real, but it is not real. Okay, something which seems to be real but is not real. Okay. Anything else? Anybody else? Any other definition? False belief. False belief. Okay. Anything else? Anybody? For your question. It's kind of a collective belief, as in a big part of society collectively believes that it is true. Absolutely, yeah, Hitesh. It's a collective belief. But आप जो बोल रहे हैं वो सारे आंसर ठीक है, उसमें ना एक एस्पेक्ट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ. That is, ध्यान से सुनना, myth is a fact till the time it's proven otherwise. जो myth है ना वो एक सच होता है जब तक उसको झुठलाया नहीं जाता. I'll give you an example. Thousands of years back, was Earth flat or round? Anybody? Flat? Earth was flat or round? क्या थी हजारों साल पहले? It was flat. Earth was always round, but it was believed to be flat. Was it a belief, Hitesh? So some basic research that people at that time did, for them it was flat, and most of the people started believing that it is flat. Most of them, all of them said Earth is flat. वो कहते थे इतना दूर जाएंगे और आगे गए तो गिर जाएंगे, तो वो अपनी जो boats वापस खींची. So for them it was not a belief, it was a fact. Are you getting it? So उस fact में जब Earth flat थी, क्या travel, communication, cultural exchange, business possible था? Possible भी था. Impossible था, right? सोच भी नहीं सकते थे कि यार इसके आगे जा नहीं सकते, तो इसके आगे दुनिया ही नहीं है. This moment पे, in one moment when somebody realized कि यार actually भैया हमें तो लगता था ये flat है, actually goal है, हम कहीं भी जा सकते हैं. When they realized that, in that one moment, did all of that become possible? It took time to make it, but it became possible in that one moment. Can you get it? Yep. So myth की ना ये power होती है कि जब तक वो myth पड़ा हुआ है तब तक बाकी सारी चीजें possible नहीं होती, और जैसे ही टूटता है बाकी सारी चीजें possible हो जाती हैं जो पहले impossible लगती हैं. और बाय द वे आपके साथ होगा ये, अगले 1 घंटे में ना यही होगा. मैं कुछ ना आपके मिथ तोड़ने वाला हूं जो आपके लिए सच्चाई है. और आपने अगर स्टोरी सुनी होगी तो जिस इंसान ने पहली बार बोला था कि भैया धरती गोल है, फ्लैट नहीं है, उसको जला दिया गया. तो वर्चुअली मेरे को ये फायदा है कि आप मुझे जला नहीं पाओगे, वो अलग बात है. असीम को जब पकड़ोगे तो पीट दो शायद. सो ये फेज आएगा. You would want... I think Yogendra has something to say. Yogendra, he raised hand actually. हाँ, sorry I missed it. Thanks. यार योगेंद्र कुछ बोलना चाहते हैं आप अनम्यूट कर लें. Okay, maybe carry on, maybe, you know. ठीक है, मैं भी गलती से लिखा. और योगेंद्र जब भी अनम्यूट करेंगे जस्ट दोबारा से बता देना. So by the way, you don't have to raise your hand. Hello. Yeah, I'm Yogendra. I think I was muted, so I wanted to say something. Yeah, sure. The first sentence which you made, that we all thought earlier the Earth was flat. That was a myth. I would put it other way. We knew that Earth is round, and people considered, the Western world considered it was a myth. नहीं, योगेंद्र, अगर हम पढ़ें, by the way, it was not considered. It was flat for them. उनके लिए flat. No, that's what I'm saying. If you go in ancient time, in Sanskrit we always call it bhugol. Bhugol itself means that bhumi is goal. It's round, not a flat one. So anyway, you can continue, but I wanted to put the fact right in the beginning itself, that it was always a round, and we considered it as a round only in Indian education system. Okay, मैं फिर एक और दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ. जब गैलीलियो ने पहली बार बोला था कि अर्थ गोज अराउंड द सन, तब उसको जेल कर दिया गया था. Yeah, that's the issue, because we only considered that we started seeing or we born when the Galilean has mentioned something. Exactly. We have never referred our Vedas and Rig Vedas and all, and we have never read those. So if we have read, we wouldn't have believed on Galilean. Exactly, योगेंद्र, मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक बिलीफ वैसा रहता है, बाकी चीजें जो पॉसिबल नहीं होती वो नहीं पॉसिबल होती. मैं ना यहाँ पे साइंस की बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मिथ जब टूटते हैं तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो जाती हैं जो पहले पॉसिबल नहीं है. And we are going to break the myth right now. Are you ready to break your first myth? Yep. Yes, ready. And this concept is very nice, that as long as myth is there,
we cannot see the other things. And the moment myth is broken, we start seeing things. This is a very great concept. Yeah. तो ये जो पहला myth आपका टूटने वाला है वो ये है कि ये जो रोल आपका पेरेंटिंग का है जो हमने बना लिया और बन गया, ये जो सामने लिखा हुआ है अभी, ये जो रोल है ये आपका रोल ही नहीं. That's a huge one, if that's true. किस किस के दिमाग में ये आ रहा है कि यार अगर ये रोल नहीं है तो मैं पिछले 25 साल से घास काट रहा हूँ क्या? इनमें भी आवाज बड़ी क्रैक हो रही थी तो बंद किया. मेरे माइंड में ये आ रहा है कि ये अगर हमारा रोल नहीं है तो किसका रोल है ये? और अगर ये नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ? Who is going to do this for our child? Absolutely. ठीक है, अभी चलते हैं. ग्रेट क्वेश्चन, ग्रेट थिंग विवेक. I'll just answer that question. बट ऐसा नहीं लग रहा सडनली कि यार यही तो कर रहे हैं और पूरा टाइम यही कर रहे हैं और ये सुशांत पागल आके कह रहा है ये तो करना ही नहीं था. तो मैंने रोज किया क्या है? क्या सुभाष, you were raising your hand. No. I was just agreeing with you. Sorry. Yeah. Agreeing with you that ये अगर ये नहीं करना फिर करना क्या? I might as well do my business and do some music hobbies, रियाज and all that. So let me तो मैं एक काम करता हूँ. मैं आपको ना एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ. ठीक है, उस वीडियो 3 मिनट का वीडियो है. उस वीडियो से फिर समझ में आएगा कि हमारा एक्चुअली काम क्या है. What is parenting all about and what is your role as a parent? And as I said, ये बहुत लोगों को लगेगा कि क्या पागल हो गया, ऐसे नहीं होता है. Hang on with it. Every myth when it breaks, it's always like this, right? So let me just quickly share the video with you. It's less than 3 minutes. Here it goes. आप सबको आवाज आ रही है? The sound is there? Yes, We can hear. The eagle gently coaxed her offspring towards the edge of the nest. Her heart quivered with conflicting emotions as she felt their resistance to her persistent nudging. Why does the thrill of soaring have to begin with the fear of falling, she thought. This ageless question was still unanswered for her. As is the tradition of her species, her nest was located high upon the shelf of a sheer rock face. Below, there was nothing but air to support the wings of each child. Is it possible that this time it will not work, she thought? Despite her fears, the eagle knew it was time. Her parental mission was all but complete. There remained one final task, the push. The eagle drew courage from an innate wisdom. Until her children discovered their wings, there was no purpose for their lives. Until they learned how to soar, they would fail to understand the privilege it was to have been born an eagle. The push was the greatest gift she had to offer. It was her supreme act of love. And so one by one, she pushed them. And they flew. Push. Sometimes we need it, sometimes we need to give it. क्या रोल है?
Anybody? Yeah, so very interesting. What is your role then? क्या दिखा कि वो ईगल जो कर रही थी? I just want to believe that the earth is still flat और यही तो मेरा रोल है कि सारा कुछ I just don't want to give up that. ये आसान नहीं होने वाला है, ये रियली आसान नहीं होने वाला है और बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. It's easier when they're young, but then फिर डर लगता है कि यार क्या वो. So I'll tell you in one letter, 3 words. Your job as a parent is to make them responsible for their life. That is it. They are capable of managing everything on their own. Your job is to make them responsible for their life. उनकी पढ़ाई, उनका खाना, उनको सुबह उठना, उनका career, उनका health, उनकी hygiene, it's their responsibility. So हम बोलते हैं हम उन्हें protect कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते. हम उन्हें protect कैसे करना है उसके capable बना सकते हैं so that they are able to protect themselves. As I was sharing about sexual abuse is 85%. 85% children go through sexual abuse. हम जितने मर्जी कैमरे लगा दें, कुछ भी कर दें, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आउट ऑफ दैट जितने भी होते हैं उसमें से अबाउट 80% आर डन बाय पीपल अ चाइल्ड नोज. कैसे बचाओगे? बचा ही नहीं सकते. द ओनली वे इज दे बिकम पावरफुल इनफ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. आई जस्ट टेक वन एग्जांपल. सो लेट्स गो इनटू दिस होल. इसमें करा कैसे? What did the eagle do and how did she got her children to fly? You know, first thing, where did, so पहली बार तो उसको लगा कि यार ये जैसे आप अभी सुभाष बोल रहे हैं कि यार whenever we make them responsible, that fear कि कहीं कुछ ना हो जाए will be so big. जब वो पहली बार चलने लगे थे और गिरे थे तो लगा था अरे यार कहीं कुछ लग ना जाए. साइकिल चलवाई तो गिरे तो चोट ना लग जाए. तो पहली बार वो डर कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा. आपके जब तक आप जिंदा हैं, जब तक इस धरती पे हैं, तब तक ये दर्द कहीं नहीं जाएगा. So it has to begin. The one line which the eagle says is, why does the thrill of soaring always start with a fear of falling? Remember that line? So where did the eagle drew the courage? Do you remember? Eagle बोलते कि she drew the courage from an innate wisdom. क्या wisdom थी? Innate wisdom of her species. So if I come and say, अरे मैंने ना एक ईगल उड़ती हुई देखी, आप क्या बोलोगे? क्या पागल है क्या? मतलब उड़ती ईगल देखी, आदमी उड़ता हुआ देखा तो बताता, ईगल उड़ती हुई देखी मतलब क्या इसका? So she started with a belief कि यार उनकी जिंदगी उड़ने के लिए बनी है, तो उड़ेंगे तो वो है ही, नॉर्मल है, ये तो नेचुरल है, उसको तो आता ही है. ईगल फ्लाइज. So एक belief का जो myth है ना, वो आपका last में तोड़ूंगा. So she starts with the belief. Okay, just hang on with that for a minute. Once we come to the last myth, आपको लगा ये बड़ा है, आखिरी वाला सबसे बड़ा होगा. वैसे अगले दोनों बहुत बड़े होंगे. Then what did she do? Once she believed that they can fly, what did she do? What was the second step? Anybody? Slowly push them towards the edge. पेशेंट का नेम क्या है? या अपना को मैं धक्के से नीचे गिराऊंगी, अब ये उड़ेगा, मैं इसको धक्का मारना पड़ेगा. डर उसको भी लग रहा है, डर मुझे भी लग रहा है. That is what is called exposure. कोई भी चीज बिना एक्सपोजर के कोई सीख ही नहीं सकता. आप अपनी लाइफ देख लो, आपने गाड़ी चलाना, लैंग्वेज, कुछ भी लिखना, कुछ भी सीखा है, वो बिना एक्सपोजर के सीख ही नहीं सकते. टुडे दिस वर्ल्ड आई मेट अप अ फ्यू पेरेंट्स हु वर सेइंग कि यार हमारे बच्चे ना सोशलाइजिंग नहीं सीख पा रहे 3, 4, 5 साल के. ऑब्वियसली कोविड ने उनको घर में बंद कर दिया, उन्हें पता ही नहीं है सोशलाइजिंग कैसे होती है. जब तक मैं सोशलाइजिंग का एक्सपीरियंस नहीं दूंगा तो वो सोशलाइजिंग सीख ही नहीं सकते. जब तक मैं बच्चे को किसी लैंग्वेज का एक्सपोजर नहीं दूंगा, वो लैंग्वेज सीख ही नहीं सकते. इफ आई टेक माय एग्जांपल, आई डिड माय इंजीनियरिंग इन कैलकाटा. आई सेड आई वाज सो अगेंस्ट, उस टाइम पे बहुत नॉन बॉन्ग चलता था वहां पे, तो मैं कहा यार मैं बंगाली सीखूंगा ही. And I told myself I will not learn it. And by the way, at the end of the 4th year, I was speaking Bengali so fluently I couldn't help it. तो अभी मैं किसी बंगाली को मिलता हूँ तो आमी बंगाली, आमी ज्यादा पूरे चले, तो मैं ये बोलता हूँ, कहता है यार ये तो सच्ची में बंगाली है. मेरे को टोनालिटी सब कुछ आ गया, जबकि मैं कह रहा था मैं नहीं सीखना चाहता. That's the power of exposure. The last thing, super critical again for every parent. Suppose for example, you ask your child कि यार आज से ना तेरा बेड मैं बना रहा था, आज से अब तू खुद बना ले. या कोई, मैंने आज तक तेरी चोटी मैंने बनाई है, कल से चोटी खुद बना. क्या वो बेड उसी लेवल पे या क्या उसकी चोटी उसी लेवल पे बन जाएगी जिस लेवल पे आप बनाते हो? Yes, no?
नहीं, no. पहली बार उसको नहाने के लिए बोलोगे तो वो शायद वो साबुन नहीं लगा पाएगा, right? So when that happens, what do you have to do? You have to respect two things. Respect the outcome कि यार हाँ टाइम लगेगा, हमने चलना भी पहले दिन में नहीं सीखा था, they fell a few times before they walked. हमने पहले दिन में कुछ नहीं सीखा है, हम सब गिरे हैं और वो गिर के ही सीखते हैं और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है. And first, respect the result, and second, respect the effort. Yes, you tried it on your own, you failed, it's okay. जब वो गिरा था पहली बार चलने में, आपने ये नहीं बोला था चलना बंद कर दे, मैं तेरे को उंगली पकड़ा के चलाऊंगा, अगली बार दोबारा चलेगा तो थप्पड़ पड़ जाएगा, नहीं बोला था. हमने कहा था चल बेटा कुछ नहीं होता, उठ ले, चल ले. फिर गिरेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुंह पे चोट लगी है ना, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम. प्यार किया, हक किया और बोला फिर से चल. This in one sheet is your role as a parent. Just imagine everything they start to do on their own. How would you be? आपको कैसा फील होगा यार, सुबह उठ रहा है, अपने आप अपनी क्लास के लिए कर रहा है, अपने एग्जाम के लिए खुद तैयारी कर रहा है, अपने करियर के लिए वरीड है, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रही है. How would you feel? How would the relationship be? जहाँ पे आपको पुलिसमैन नहीं बनना पड़ रहा, आपको पीछे नहीं पड़ना पड़ रहा. Sushant, if you allow me to share a small, quick 1-minute example. Sure. So, guys, I you know, in 2005, my son was 5 years old, and he just started going to school. And I was talking to Sushant at that time. I called him. I still remember he was on a holiday, and I said, you know, Sushant, बहुत प्रॉब्लम है यार, सुबह स्कूल जाने का टेंट्रम है, 4 महीने का टेंट्रम है. तो सुशांत सेड, स्कूल किसको जाना है? मैंने कहा उसको. प्यार किसको होना है? मैंने कहा उसको. तो कहता उसको होने दो. डज ही लाइक टू गो स्कूल? मैं कहा हाँ, बट ये सब, ट्रस्ट मी, माय सन फ्रॉम 5 years of age, उसको अपना पॉटी जाना, नहाना, कपड़े चेंज करके यूनिफॉर्म पहन के रूम से बाहर आना. It took time, as Sushant said that, but within 15-20 days time, he started doing himself. And I used to see मेरे फ्रेंड जिनके बच्चे 8-8, 9-9, 10-10 साल के हो गए हैं, उनको उठा के बेड से पॉट पे बिठा रहे हैं, फिर बाहर बुला के कपड़े पहना रहे हैं. So actually this works, and why I'm sharing, because it worked with me. Because 5 years का बच्चा, आप सोचो, I don't know how many of you have 5-6-year-old child or 10-year-old child, क्या वो खुद उठता है, क्या वो खुद तैयार होता है, क्या वो खुद नहाता है, क्या वो खुद कपड़े पहनता है? Yes, it is possible, guys. But the only one thing which I remembered from that quick conversation with Sushant was, Asim, as a parent, it is your job to make him responsible for his life and his acts. And you have to give him exposure, and you have to respect the time he's going to take. It works. Lovely. Thank you, Sushant, once again for, 16 years back what you told me. And this works. Like, by the way, Asim, for both my kids, हमने कभी सुबह उठाया नहीं. सुबह उठाने का मतलब हम उठेंगे, गप्पे मारेंगे, मस्ती करेंगे, साथ में चलेंगे छोड़ने के लिए. बट जिस दिन तुम नहीं तैयार हुए, उस दिन तुम्हारी बस मिस हो गई, तो उस दिन बस मिस हो गई, घर बैठ जाओ, हम छोड़ने भी नहीं जा रहे. Absolutely. बैठते हैं अकेले, कुछ नहीं करना होता, बिकॉज हम ऑफिस चले गए, घर बंद कर दिया, वो अगले दिन आधा घंटा पहले तैयार होकर बैठ जाते हैं कि भैया हमें दोबारा नहीं जाना इस रास्ते. Amita wants to say something, Sushant. Hi Ashwini, एक second, sorry. Hi Ashwini, you're a part of this group. I didn't know that. Ashwini Arya, yeah. Sorry. Yeah, Amita. Yeah, no, I just wanted to say that, it all boils down to कि वो push आपको कब देना है. वो push आपको देना होगा even after 20 years or after 15 years, or you decide to give it after 5 years. Absolutely. The effort is same, resistance, inertia is same to give that push, but No. Amita, it's the easiest right now. Inertia will change, I guess. Yeah. I'm saying if you don't give it now, the push, they have to bear it even in the later part of the stage. It will be far more difficult. Far more difficult. As a parent, it will be difficult for you. I'm saying resistance will increase. No, as a kid also it will be difficult actually. Think about it यार, अगर अभी बच्चा 2 साल का, अगर 3 साल का, 5 साल का, आप उसको बोल रहे हो अपने आप पढ़ ले, ठीक है? अभी पहली बार अपने आप पढ़ाई करेगा तो उसके एग्जाम्स, उसके रिजल्ट्स कम आएंगे. तो 5 साल का बच्चा फर्स्ट क्लास में मार्क्स कम आए, आप भी झेल लोगे, वो भी झेल लेगा. 10th में कम आए, कौन झेलेगा? 12th में कम आए, कौन झेलेगा? कॉलेज में कम आए, कौन झेलेगा? So it becomes far more difficult. Yes.
The easiest is now. And by the way, if you have a 25-year-old, the time is right now. क्योंकि 25 में जो resistance है वो 30 में और बढ़ने वाली. And you know, Amita, I've seen parents जिन्होंने बच्चों को ये push और responsible नहीं बनाया, जब बच्चे को हॉस्टल जाना होता है वो भेज ही नहीं पाते हैं. ना पेरेंट्स तैयार होते हैं ना बच्चा तैयार होता है हॉस्टल के लिए, और करियर का नुकसान करते हैं. अच्छा रुको हम पहले मिथ कट गए, अभी 2 मिथ और बचे हुए हैं. Hitesh wants to say something, Sushant. He is the last thing, because we have a lot of things to cover. Yeah, Sushant, I want to further about the respect part. So you said that we should respect the efforts and we should respect the outcome as well. Now, if we are respecting the outcome and it might lead to complacency, how to deal with that? It doesn't. That's a myth again. बहुत सारे myth हैं यार. अच्छा, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं. There are about 47 people on the call. Anybody sitting here wants to fail in his life or her life? हाथ खड़ा करो जो फेल होना चाहता है लाइफ में. बहुत फेल होते हैं सर. As in, I want as in it leads to some learning. So definitely. एक से ज्ञान नहीं चाहिए मुझे यार. हिंदी में yes और no का जवाब है. फेल होना चाहता है पूछा हूँ. फेल मैं 500 बार होता हूँ. मैं रोज फेल होता हूँ अपने जॉब में आज. Correct. Anybody you met who wants to fail? No one. तो by the way ये ना लगता है कि बच्चे complacent हो जाते हैं. कोई नहीं होता. जब आपको कम मार्क्स मिलते थे ना एक सब्जेक्ट में, तो दिन में धड़क होती थी कि यार टीचर मार्क्स मत बोल, ऐसी दे दे मेरे को, बिना बताए मार्क्स दे. मैं ना चुप रहे बोल मत. और फिर घर जाके बोलते थे इतने मार्क्स है मैं परवाह नहीं करता, लेकिन अंदर से जले होते थे. सुशांत सर एक बात बोलना चाह रहा था, इफ यू अलाउ मी. दिस इज सुरेंद्र हियर. अगर मतलब रेस्पॉन्सिबल बना दिया या एफर्ट चालू कर दिया, पुश दे दिया और वो चीजें वैसे ही चलती रही और 10वीं में जाके भी नंबर कम आ गए, तो वो एक पेरेंटल गिल्ट की यार अगर कुछ कर लेता पहले तो यू नेवर नो. इस वाली बात से कैसे ये फियर कहीं नहीं जाएगा. तो बाय द वे जो मैंने 15 मिनट में आपको बोल दिया ना, दिस विल टेक एटलीस्ट with our support at least a month to implement. At least a month with our support. ये अकेले नहीं होने वाला. ये मैंने एक लाइन में बता दिया आपको. ये कैसे ट्रांसफर करोगे, इसमें बहुत एफर्ट है और बहुत टाइम. बट काम यही है. Is it possible? The answer is yes. That effort धीरे धीरे जाएगा, वो एक साथ में नहीं होगा. And by the way सुरेंद्र, उसका सिंपल सा सवाल है. आप 10th के फेलियर की बात कर रहे हो. अगर आपने आज नहीं सिखाया तो चलो 10th में भी नहीं सिखाया, तो फिर जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कहाँ जाओगे आप? चलो 10th में समझा दोगे, उसके रिजल्ट्स कॉज कर दोगे, उसके घर, उसकी नौकरी और उसके बिजनेस में जाके उसको हेल्प कर पाओगे? वहां पे कौन बताएगा? और फिर वो आके पता क्या बोलेगा उल्टा, यार पहले क्यों नहीं गिरने दिया, पहले क्यों नहीं सिखाया, अब तो मुझे आता ही नहीं. तो लेट्स गो आगे. आप सब इसी में अटक गए. हम बहुत सारे एक काम करेंगे, लास्ट 15 मिनट सवाल जवाब कर लेंगे, उसमें कर लेंगे. जरूर. द फर्स्ट थिंग इज दिस. एक दूसरी चीज, ओके, दिस मिथ विल बी मे बी इवन बिगर देन दिस. तो एक सवाल आप लोगों से फिर से, कि अभी मैं पिछले हम आधे पौने घंटे से बातें कर रहे हैं, आपको अभी क्या फील हो रहा है? व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ? तो ये चार्ट मैंने आपके सामने रखा है, बहुत सारी फीलिंग्स हैं. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू फिगर आउट क्या फीलिंग आ रही है आपको, क्या क्या. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थॉट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स. सो what are you feeling right now? I want a few people to shout out and a few people to write. क्या महसूस हो रहा है इस टाइम पे? इस फीलिंग चार्ट से देख और सरप्राइज्ड. Yeah, so for me it is anxious. यार ये तो अपना बिल्डिंग हिल गई है, अब आगे क्या होगा? ठीक है. and go deeper. Okay, एक नहीं होगा, बहुत सारी फीलिंग्स होंगी. So surprised, excited. Okay. So I am curious. Actually, I am a new parent, so I am curious. Curious. Okay. And I am hopeful. Keep moving ahead. और भी देखते रहो, सिर्फ एक फीलिंग नहीं होगी. Everybody will have multitudes. Interested. Okay. Little embarrassed also. That's perfectly fine. Embarrassed कहाँ पे है सर? वहाँ पे कहीं लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा. I'm feeling confident. I'm feeling confident. Okay, got it. Great. And Asim, keep going more, because सिर्फ एक नहीं होंगी, बहुत सारी होंगी. Good.
तो एंग्शियस के साथ और एनीथिंग एल्स? सॉरी, Excited, interested, okay. optimistic. Optimistic. More hopeful, I would say. Now I'm like Hopeful. listening to whatever minutes of Sushant. Got it. आगे लग रहा है कुछ कहीं को क्या कर दिया? Sorry, somebody. Proud and powerful. Okay, got it. So एक चीज देखना, and I'm sure अगर आप ध्यान दोगे तो कहीं पे यार कि मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने कोई गलती कर दी है, कहीं गिल्ट, कहीं लेट डाउन, कहीं ऐसी फीलिंग्स भी आ रही हैं किसी को, and it's okay to have that feeling, right? Yes. क्या तो सैडनेस भी लग रहा है, फियर भी लग रहा है, कहीं एंगर। तो अगर अब आप एक चीज देखना, ओके, एंड बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। मैंने सेम चीज बोली है आप सबको, मेरे वर्ड्स एग्जैक्टली सेम गए हैं आप सबको, लेकिन आप सबकी फीलिंग्स अलग अलग हैं। कईयों की सिमिलर हैं, कईयों की अलग हैं, कईयों की सेम हैं, बट हर एक की फीलिंग दूसरे से मिलती हुई नहीं है, हर एक की अलग फीलिंग है। यस, नो? यस। सो अगर मुझे पता करना है, और बाय द वे अगर मैं गेस मारता, अच्छा ये लग रहा है, ये लग रहा है, क्या मैं ठीक होता? अच्छा यार असीम को ये लग रहा होगा, सतीश को ये लग रहा होगा, धीरज को ऐसा लग रहा है, सत्येंद्र को ऐसा लग रहा है, विल आई बी राइट इन दैट असम्पशन? नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब अब शक्ल पे नहीं लिखा हुआ किसी के कि यार वो कॉन्फिडेंट लग रहा है मुझे, या वो एक्साइटेड लग रहा है, या वो ये लग रहा है कि थोड़ा सा एंग्जाइटी आ रही है, वो अंदर चल रहा है, बाहर नहीं दिख रहा है। और अगर मैंने असम्पशन करी तो मैं गलत होऊंगा। सो करंटली in this situation or whatever situation, what is happening with your children? What is your child feeling or going through? Do you know that? तुम्हारे बच्चे के साथ क्या चल रहा है, उसकी क्या फीलिंग है? वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं, वो ये काम कर पा रहे हैं, जो भी फीलिंग है किसी भी सिचुएशन में, जो भी आप डील कर रहे हैं उनके साथ, उस सिचुएशन में बच्चे की फीलिंग्स क्या है? डू वी नो? No. Can you take a second and really say, we don't know? फायदे में आप एक ही चीज दो बच्चों को बोलते हो, दोनों बच्चों को अलग फीलिंग आती है, और एक के अंदर क्या चल रहा है, दूसरे के अंदर क्या चल रहा है, पता ही नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल टू नो। अगर मुझे जानना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा, आई गेस। पूछना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे पूछा, मुझे पता चल गया। अगर जैसे अभी किसी ने बोला मैं एंग्शियस हूं, तो मैं आपका एंग्जाइटी बात करके एड्रेस कर सकता हूं जब मुझे पता है एंग्शियस है। अगर कोई सैड फील कर रहा है तो मैं सैडनेस को वो कर सकता हूँ। कोई अगर क्यूरियस है तो मैं उसकी क्यूरियोसिटी एड्रेस कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, राइट? एक्साइटमेंट को यूज कर सकता हूँ जब मेरे को पता चलेगा कि वो एक्साइटेड है, वो इंटरेस्टेड है। अब यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इसमें 10 लोग इंटरेस्टेड हैं, तो मैं उनको बात कर सकता हूँ। बाकी जो डिसइंटरेस्टेड है, मैं उनको उनके भी पीछे इंटरेस्टेड समझ के बोलने लग जाऊँ, तो उनको वैल्यू 0 मिलेगी। कैन यू गेट दैट? सो व्हाट आई जस्ट ब्रोकन अ मिथ, आपको अभी उसकी इम्पैक्ट और इंटेंसिटी नहीं समझ में आ रही होगी शायद। आई जस्ट सेड टू यू दैट यू डू नॉट नो योर चाइल्ड। Actually, we think we know, but fact is that we don't know. Nothing wrong with it, by the way. अगर मैंने ये चार्ट आपके सामने नहीं रखा होता तो शायद इतनी क्लैरिटी से आप अपनी फीलिंग भी नहीं बता पाते। ये जो चार्ट मैंने आपके सामने रखा, आप हैप्पी, हाँ ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, हाँ ऐसा लग रहा है, पता नहीं कैसा लग रहा है, आप बता नहीं पाते जब तक मैं ये वर्ड्स नहीं डालता। सो ये वर्ड्स आपको हेल्प करे, लेकिन आप ही बता पाओगे। So the second myth I'm breaking for you is that I know what is happening to my child. Nothing wrong with it. तो आपका सेकेंड स्टेप, अगर आप पेरेंटिंग में वो उनके साथ वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, मैं बता ही नहीं, तो आपको मैं आज ना एक इक्वेशन दे जाता हूँ। वो इक्वेशन इंप्लीमेंट करने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन बहुत लॉजिकल स्ट्रेट इक्वेशन है। अगर हम किसी बच्चे के साथ, आपके अपने बच्चों के साथ आप कोई इशू डील कर रहे होते हैं, कोई इशू
सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हम कितना टाइम सोल्यूशन में लगाते हैं? सपोज 100% टाइम है, तो हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड इन सोल्यूशनिंग इट, हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड इन डायग्नोसिंग इट? समझ रहे हो मेरा सवाल कि वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, उसका डायग्नोसिस करने में कितना टाइम लगाते हैं और उसका सोल्यूशन निकालने में कितना टाइम लगाते हैं? Anybody? 80-20 धीरज 20% लगाते हो? ओके, दैट्स ग्रेट। Anybody else? So you can see that diagnosis is very small. जैसे कोई इशू आता है हम उसको सॉल्व करने लग जाते हैं। सॉल्यूशन तो रेडी रहते हैं सर हमारे पास, सॉल्यूशन सेंट्रिक है हम। ऐसे नहीं ऐसे ओ हम तो जुगाड़ू हैं, हम तो हर चीज का जुगाड़ निकालते हैं। बट आई विल गिव यू एन इक्वेशन टुडे। योर सक्सेस रेट of solving a problem or solving any issue is equal to the percentage of time spent on diagnosing. Yeah. आप 2% टाइम लगाओगे ना, आपका सक्सेस है 2%। आप जितना मर्जी करते रहो होगी नहीं सॉल्व, क्योंकि हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता। और बाय द वे वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सो आई विल टेल यू वन थिंग, जो आपको इश्यूज फेस हो रहे हैं डे टू डे अफेयर, रोज जो इश्यूज हो रहे हैं, छोटे मोटे बड़े कुछ भी, कितने सालों से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, या कितने महीनों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो? काफी टाइम से, बहुत टाइम हो गया है। एक्चुअली सुशांत क्या होता है ना कि वी ट्राई टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, एक्चुअली वी डोंट ट्राई टू फाइंड ए सॉल्यूशन। नहीं, I'm shifting. I'm saying see, we need to find the problem first to solve it. तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता। ओके। सॉल्यूशन बाद में निकालेंगे, पहले प्रॉब्लम ढूंढनी है। अब प्रॉब्लम का रूट कॉज ढूंढना है। एग्जैक्टली। अब मैं क्यों नहीं खाना खा रहा, उसके हजारों रीजन हो सकते हैं, और एक बच्चे के दूसरे बच्चे के। यार एक म्यूट कर दोगे अपने को, बहुत आवाज आ रही है। हेलो, या कर दिया मैंने सुशांत। Thanks. So, equation is the amount of time you spend on diagnosis will be equal to your success rate. देखो, एक साल पहले सेम टाइम पे कोविड हो गया तो हम सोचते थे मर गया, क्योंकि हमें कॉज नहीं पता चल रहा था, प्रॉब्लम नहीं पता चल रही थी उसका जैसे ही हमें कॉज पे चले गए कि यार हो क्यों रहा है, वी कुड फाइंड अ सोल्यूशन। इवन कैंसर इज क्योरेबल इफ डायग्नोज्ड प्रॉपर्ली एंड इन टाइम। सो हम लोग ना जो सॉल्यूशंस में लगे हुए हैं उसमें दो चीज नोटिस करना, एक तो सॉल्यूशन नहीं आया, सेकंड हमने अपना रिलेशनशिप बर्बाद कर दिया, उस एरिया बर्बाद कर दिया इज द वर्ड, यू डिस्ट्रॉयड इट। बिकॉज जैसी वो बात होती है बच्चा वो सुनना ही नहीं चाहता है, आप जैसी वो बात करना चाहते हो आपका भी पारा बढ़ जाता है। सो सॉल्यूशन भी नहीं आया और रिलेशनशिप भी खत्म हो चुका उस एरिया में। So the second myth is we do not know. Your job is to know first. और वो कैसे पता लगाओगे? उनकी फीलिंग से कॉन्सेंट्रेट करके कि यार अच्छा तेरे को लग कैसा रहा है, और जब तक वो नहीं बताएगा तब तक आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। और ये आसान नहीं होने वाला है, बट दैट्स द स्टार्ट पॉइंट। विल यू गो टू अ डॉक्टर हु डज नॉट डायग्नोज यू बट गिव्स यू अ मेडिसिन? अच्छा यार आजकल वायरल चल रहा है, वायरल की दवाई ले लो। अच्छा यार, अच्छा वायरल से नहीं ठीक हुई 2 दिन, चल मलेरिया होगा, चल मलेरिया की दवाई दे देता हूँ। आप उस डॉक्टर के पास को मार दोगे कि भाई रहने दे यार, पहले ब्लड टेस्ट कर ले, सवाल पूछ ले, कुछ तो टेस्ट कर, बाद में दवाई दियो। बट वी डू दैट ऑल द टाइम विद आवर चिल्ड्रन। वी डोंट नो द कॉज एंड वी नो द क्योर, और लगे हुए बिकॉज वी आर नॉट क्योरिंग द कॉज, क्योरिंग द सिम्टम। हम बुखार ठीक कर रहे हैं, बुखार क्यों हो रहा है वो ठीक नहीं कर रहे। क्रोसिन से बुखार 3 घंटे के लिए उतर जाएगा, लेकिन कॉज से फिर वापस आ जाएगा। और बाय द वे अगर हम वायरल को भी ठीक से नहीं ट्रीट करेंगे, दैट कैन बी फेटल। सो रिमेंबर, यू गॉट टू गो टू द कॉज, दैट्स द सेकंड वन। ठीक है, ये दो मेन, दे हैव टू बी रिस्पांसिबल एंड यू हैव टू कंसंट्रेट एंड एक्ट एंड कनेक्ट। एक आखिरी मिथ बिफोर वी ओपन इट अप। तो उस मिथ के लिए ना मैं आपको फिर से अपनी फेवरेट एक्सरसाइज करने के लिए बोलूंगा। ये परवरिश की ना वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज होती है कि आंख बंद कर लो। सब लोग अपनी आंखें बंद कर दो 2 मिनट, आधा मिनट के लिए, and I'll tell you what to do when you close your eyes. So when you close your eyes, get a real 2.5 to 3-year-old child in your mind. जो बच्चा अभी 2.5 से 3 साल का हो। Do not imagine your child, यार वो बच्चे में क्या बचपन में कैसा था, मत करना, मैं रोक रहा हूँ, बिल्कुल मत करना, एक्सरसाइज बेकार हो जाएगी।
कोई भतीजा भांजा, फ्रेंड का बच्चा, कल कॉलोनी में कोई बच्चा हो, जो भी बच्चा अभी 2.5, 3, 3.5 साल का हो, उस एज रेंज में हो, उसको अपने माइंड में ले आओ अभी एंड बी विद द चाइल्ड फॉर अ व्हाइल। वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रही है, वो चिल्ला कैसे रही है, वो रो कैसे रहा है, वो बोल क्या रहा है, वो सवाल क्या पूछ रहे हैं, वो टैंट्रम्स क्या थ्रो कर रहे हैं। जस्ट बी विद अ 3.5-year-old child, उसके साथ just be with that, and once you're in the presence of that child, open your eyes, like really get present to a child of that age. So my question is, how many of you couldn't get one? कौन कौन है जिनको नहीं मिला? सबको मिल गया? आई एम अज्यूमिंग, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सबको मिल गया। सबको मिल गया? यस? Oh great. So let's look at that. I am assuming that all of you have got at least one child of that age range. अगर 3, 3.5 नहीं मिला, 4 कर लो, मतलब उससे ऊपर मत जाना। उससे ऊपर जाना पड़े, अगर नहीं मिल रहा तो चले जाओ, बट थोड़ा सा डिफरेंस दिखने लग जाएगा आपको वहां पे। So my next few questions answer from the perspective of that child. उस बच्चे को दिमाग में रख के हाँ या ना में जवाब देना, और आना नहीं तो चैट पे कर देना, नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल रीड द चैट, आई विल ओपन द चैट राइट नाउ, आई विल पुट द चैट हियर। Is that child mostly happy? Mostly 70, 80, 80, 95% वो ना मस्ती कर रहे हैं, मतलब खुश हैं, उठते हैं खुश, उठते हैं, भागते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, चाहे बारिश हो तो बारिश में खेल रहे हैं, धूप है तो धूप में खेल रहे हैं, मतलब मस्ती, अरे मॉर्निंग हो गई, लाइक राइट। एंड देयर टाइम्स व्हेन दे आर नॉट हैप्पी, इट्स नॉट दैट कि वो 24 घंटे हैप्पी रहते हैं। जब वो हैप्पी नहीं होते, उनको गुस्सा चढ़ रहा होता है, उन्हें कुछ चाहिए होता है, या फिर वो टैंट्रम थ्रो करना पड़ता है, तो वो कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कौन देखेगा मुझे। कोई भी सामने बैठा हो, वो कहीं भी हो, मॉल में हो, उनको टैंट्रम, वो लेटना है लेट जाएंगे, सड़क के बीच में लेट जाएंगे, वो नहीं सोचेंगे यार कौन देख रहा है मुझे, क्या सोचेगा मेरे बारे में, कुछ नहीं, मेरे को बोलना है आंटी आप अच्छी नहीं लग रहे हो, घर से जाओ, और फिर आप संभालते रहते हो पीछे वो आंटी को क्या कर दिया कुछ भी बोल देंगे, राइट। So either they will be happy or they will be expressing. गुस्सा आ रहा है तो दिखा दिया, ये नहीं है कि गुस्सा है और अब बैठ गया मुंह पे, नहीं नहीं सब ठीक है अंकल, नहीं ऐसे नहीं होता, वो बोल देगा बहुत गुस्सा चढ़ रहा है, मेरे को रोना है, मेरे को रोना है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना होता है? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 क्या रेट करोगे? स्केल ऑफ 1 to 10 क्या, कितने मार्क्स दोगे? 10? एक्चुअली मैं ना 20 देता हूँ, क्योंकि जब गाड़ी खुलती है ना, जब गाड़ी खुलती है तो ये बच्चा where does she sit on in a car? जैसी गाड़ी खुलती है वो बैठती कहाँ पे जाते? ड्राइवर सीट पे। ड्राइवर सीट पे। एग्जैक्टली, मैं चलाऊंगी, उसको पता है मुझे चलानी नहीं आती, ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है, नीचे पैर लग नहीं रहे हैं, लेकिन चलाऊंगी मैं, और स्टीयरिंग व्हील को ना ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं और आपको खींचना पड़ता है, तो मतलब उसको पता है मुझे नहीं आता लेकिन करूंगी मैं। वो लेवल है कॉन्फिडेंस का। कितने सवाल पूछते हैं एक दिन में? सुबह से उठते जब तक आंखें बंद नहीं होती रात को, तब तक क्यों, कहाँ, कैसे, ये क्या, ये क्या, ये कहाँ जा रहे हो, ये रंग क्या है, मतलब भैया माफ कर दे, चुप कर, बहुत हो गया। एक्सप्लोरिंग एबिलिटी अमेजिंग। हर ड्रॉर खुलेगा, हर चीज टूटेगी, हर चीज मुंह में डलेगी, हर वो सॉकेट के अंदर उंगली डालनी है, हर चीज खोल के देखनी है, ये चलती कैसे, ये क्या कर रहे हो, लैपटॉप पे हो तो अच्छा पापा यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब दे हैव टू गो इनटू एवरीथिंग, राइट। डू दे एवर गिव अप? स्टोरी अभी सुननी है, आइसक्रीम अभी खानी है, अब भी चलो, अब भी करो, अब भी, और आप नहीं करोगे तो आपकी वाइफ के पास चले जाएंगी, फादर के पास चले जाएंगे, वो दोनों मना कर देंगे तो दादा दादी, मतलब किसी भी तरीके से कुछ नहीं मिला सर दीवार पे मार देंगे, करो। लव एंड केयर, आते जाते खेलते खेलते हक करेंगे, किस करेंगे, चले जाएंगे, लाइक फुल ऑफ लव एंड केयर, राइट। एक और सवाल वो नोटिस करना पड़ेगा, हैव यू नोटिस दीस चिल्ड्रन एड्रेस देमसेल्फ? वो अपने आप को एड्रेस कैसे करते हैं, बुलाते कैसे? नोटिस किया है कभी? छोटा बच्चा अपने आप को कैसे बुलाता है, अपने आप को रेफर कैसे करता है? मतलब हम बोलता है जनरली, हम बाद में आता है, बाय देयर नेम। एब्सोल्युटली, हम और मैं बाद में आता है। सुशांत को नींद आ रही है, सुशांत को घूमने जाना है, सुशांत को खाना खाना है, वो अपना नाम लेता है। देखने कोई अगर उसको प्रिंस बोला हुआ, उसको नाम प्रिंस को करना है, मतलब राजा करेगा, मतलब वो ना, वो बोलते हैं कि यार मैं राजा हूं, मैं ही करूंगा, मैं हूं। तो ना जो पुराने चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स होते थे वो इसको बोलते थे ईगो सेंट्रिक बिहेवियर। इन आर मॉडल, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था ना, गोल मॉडल, में अभी दोबारा से दिखा दूंगा,
we call it they're very high on their self esteem. उनको लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये कर सकता, हाँ कर सकता, खाना हाँ बना लूंगा, ये मैं हाँ कर लूंगा, हाँ मैं खुद लूंगा, सब कुछ, they can do everything. एक आखिरी चीज, they are not independent but they want to do everything themselves. एक टिपिकल नॉर्थ इंडियन वर्ड्स हैं, आपने सबने सुनोगे, आपे आपे, यस, खाना आपे आपे, नहाना आपे आपे. अब वो खाना खा रहा है लेकिन वो आधा खाना सब यहाँ पे है, पेट मतलब सब कपड़ों पे है, आधा टेबल पे है, बाकी नीचे गिरा हुआ, मुंह में शायद इतना सा गया है, लेकिन खाऊंगा मैं खुद. मैं खुद नहा लूंगी. अब नहाने के बाद बाथरूम में घुसोगे तो बीच बना पड़ा है और वो सूखे बाहर निकल रहा है. सो नाउ जस्ट see this whole thing, okay? We are about 45 people accepting me in this call. We all have imagined a different child. अलग घर से है, अलग रिलीजन हो सकता है, अलग परवरिश है उसकी, यूनिटाइज फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेट ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? लेकिन ये क्वालिटीज सब में दिख रही है. एंड लेवल क्या है? ऑलमोस्ट 10 on 10. 2 मिनट सोचो, एक इंसान, a human being who is capable for this, who is happy, who is self-expressed, who is confident, who is inquisitive, who is exploring, who doesn't give up, who is full of love and care, humane है, high self-esteem और independent है. ये इंसान लाइफ में क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है. कुछ भी कर सकता है. और वो जो क्या नहीं कर सकता. तो अगर ये बच्चे जो आपने 2.5-3 साल के इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन नहीं कर रहे हैं, जो जिनके बारे में देखा, अगर वो बच्चों के पास ये है, तो आपके बच्चों के पास क्या है? आपके बच्चे कैसे पैदा हुए? और इस सवाल को थोड़ा और बड़ा कर दो, अगर आपके बच्चे पैदा ऐसे हुए तो आप कैसे पैदा हुए? पर सर, अगर इस एज में बच्चा बोल सकता है, उसको सब इग्नोर कर देते हैं. अगर बड़ा वही चीज बोले तो वो सीरियस हो जाती है. वही तो प्रॉब्लम है, वही तो करना है, अभी चलते हैं उसमें. और बच्चों को मना भी करना पड़ता है. मेरा बेटा 7 ईयर का है, अभी कोई घर में आएगा वो जैसा दिखेगा उसको क्लियरली बोल देता है, बट अभी कोई सुन लेता है. बट अगर वो बड़ा होकर ये बोलेगा कि आप ऐसे हो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है. अगर मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि उसका एक्सप्रेशन भी ना दबे, यस, और वो रिस्पॉन्सिबल. आप इस लिस्ट पे देखोगे, एक्सप्रेशन के साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इंडिपेंडेंट भी है, कि मैं ना रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं गलत काम नहीं करूंगा लेकिन मैं एक्सप्रेस भी करूंगा. तो ये सारी चीजें करनी, ये एक चीज को पकड़ के नहीं कर सकता. एक भी चीज पे कम हो जाएगी ना, आपको दूसरी जगह हिलना शुरू हो जाएगी. यस. तो मैं आपका जो मिथ तोड़ने वाला हूँ वो ये है, जैसे मैंने बोला, तो हर इंसान, every human being born is born with all these powers. In our philosophy, in our research and in our model, we say every human being is born no limit. तो असीमित पैदा हुआ है. अगर आप इन 10 चीजों को, इन 9 चीजों को अपने नर्चर करके, इमेजिन a 21-year-old, 25-year-old human being with all these qualities, कुछ भी कर लेगा वो पैदा ही वैसे हुआ है. और बाय द वे मैं कुछ ना ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं बता रहा, कोई लोग बोल रहा था वेदांत पढ़े नहीं है. अगर हम अपनी गीता या कहीं में चले जाएं तो वो भी यही बोलती है, हम ब्रह्मा अस्मि, भगवान इधर है. एंड बाय द वे, गो टू एनी रिलीजन, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लो, या फिर आप कुरान पढ़ लो, या फिर आप बाइबल भी पढ़ लो, यू आर क्लोजेस्ट टू गॉड. मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा हूँ. दिस इज व्हाट योर रोल इज, कि दे आर बोर्न नो लिमिट. जो बिलीव था ना, यू विल फ्लाई. तो जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं पता है मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, मेरा बच्चा ना ये है. ओके, ये तो सारे ह्यूमन बीइंग हैं, वो अभी अनडैमेज्ड बच गया है, इसलिए हम बताओ करना क्या है. तो योर जॉब इज टू फर्स्ट नो, जो आज आपको समझ में आ गया कि यार मेरा बच्चा असीमित पैदा हुआ है, क्या मैं उसको डिस्कवर कर सकता हूँ, क्या मैं इसको एक्चुअलाइज कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू एट होम, सो दैट ये जो 9 क्वालिटीज जो वो पैदा हुआ है लेके, अगर आप किसी 5 साल के बच्चे को देखोगे, 10 साल को देखोगे, 20 साल के देखोगे, अपने आप को देखोगे, हमारी ये क्वालिटीज हम में अभी भी हैं, बट कुछ दब गई हैं, कुछ डैमेज हो गई. कैन आई रिमूव द डैमेज? कैन आई
रिमूव द, सारी हैं वो दबी हुई हैं, कैन आई रिमूव दिस एंड लेट इट बैक, एंड दैट्स द होल गेम. So मेरे को असीम बोल रहा था ये अपने पैशन में पागल हो गया, मैं पागल हो गया हूँ यार. When I saw this and actually I discovered, by the way, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी सी. So जब मैंने डिस्कवर किया ना, मैंने अमन के साथ डिस्कवर किया when he was born in 2000. So that was my whole journey when it started. I said यार मेरे को तो कुछ भी नहीं करना, ये तो सारा है उसके पास. Can I make sure in my wife यार हम दोनों इसको डिस्ट्रॉय ना होने दे बस. और वो जर्नी आसान नहीं है क्योंकि चारों तरफ द स्कूलिंग सिस्टम, द पीपल अराउंड, वो सब, इफ यू लुक एट इट, जैसे हमने बोला ना, बच्चे ने ऐसे बोल दिया उसको रोकूंगी नहीं तो वो बदतमीजी करेगा, तो मैं कैसे रोकूं, तो फिर मैं रोक देती हूँ, सप्रेशन हो गया. अब वो बोल ही नहीं रहा है, अब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जब एक्सप्रेस नहीं कर रहा तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकती, सब जगह डैमेज दिख जाएगा. जब वो एक्सप्रेशन उसका रोक देंगे, उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, अगर मैं बोल दूंगा तो आप लोग बोलते हो गलत है, तो मैं बोलूंगा ही, तो मैं चुप हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया. सो इट्स डिस्ट्रॉइंग इट अननोइंगली. सो मैंने ना उसको 3 साल, 3.5 4 साल का था, 3.5 साल का था, जब मैंने उसको बोला अमन देख ये सारी चीजें तेरे में हैं और तू कुछ भी कर सकता है. तो यू नो व्हाट ही सेड टू मी, ही सेड पापा सब कुछ कर सकता हूं मैं. हाँ कुछ भी कर सकता हूं. कहता क्या मैं उड़ सकता हूँ? शिट, ये क्या पूछ लिया. मैंने कहा भाई 1 मिनट, मतलब मेरे को सडनली झटका लगा. मैंने कहा 2 मिनट रुका, मैंने कहा देख बात सुन यार, अभी ना ह्यूमन बीइंग्स के लिए ना बिना किसी हेल्प के, बिना हेलीकॉप्टर के या बिना ग्लाइडर्स के या बिना प्लेन के उड़ना पॉसिबल नहीं है. तो ना छत पे जाके कूदियो मत प्लीज, अभी पॉसिबल नहीं है. हो सकता है तू पहला इंसान हो सकता है तू इन्वेंट कर दे ऐसा कुछ, लेकिन अभी नहीं. तो ये बात हो गई, निकल गया. 10th में भाई साहब आते हैं, 10th में 9th के एंड में, एंड ही सेज आई वांट टू बी अ पायलट. वो 12 13 14 साल पुरानी कहानी सारी एकदम सामने आ गई. मैंने कहा ये बच्चा था जो 3 साल का मुझसे बोल रहा क्या मैं उड़ सकता हूँ. एंड बिफोर हिज 19th बर्थडे, बाय द वे 19th बर्थडे, he was a licensed commercial pilot. Wow. उसने ड्राइविंग लाइसेंस अपने फ्लाइंग लाइसेंस के बाद लिया. जब वो टेस्ट के लिए गया था तो मैंने उसको बोला, नहीं कहा यार ये लड़का जो चला रहा है ना आपके सामने, इसको इसके पास फ्लाइंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है. So that is what is possible. In that age he could do it. And by the way उसको किसी ने पढ़ाई नहीं करने के लिए, ये तू खुद कर रहा है, because he wanted to be one and he said I will want to be one. That's one. So in short, this is, sorry, got it all came back to me in a second. So your role as a parent is this. जो आज 3 बहुत बड़े भ्रम तोड़े कि यार your job is to make them responsible, and this can start as early as 2.5 years old. असीम ने 5 साल में फोन किया था, तो 5 नहीं 2.5 साल से शुरू हो सकता है. और कैसे हो सकता है, आप एक एक करके सब कुछ उनको शिफ्ट कर सकते हैं, सब कुछ, and they will enjoy it. Second, your job is to concentrate on the feeling, ask and connect at a very intimate level. And third is उनकी असमर्थता के ऊपर फोकस करना. जस्ट 1 सेकंड लेना, जो भी आपको इश्यूज फेस हो रहे हैं, अगर ये चीजें ऊपर चली गई, जो भी आपको इशू फेस हो रहा है, अपने बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का, डजंट मैटर, व्हाटएवर इशू आर यू फेसिंग राइट नाउ, टेक अ मिनट एंड थिंक. अगर ये वाले एलिमेंट्स बढ़ गए तो क्या वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे? एंड डोंट गिव मी अ फिलोसॉफिकल आंसर, आप अपनी पर्सनल लाइफ में अपने बच्चे के साथ इसको एग्जामिन करोगे. इफ ऑल दीज एलिमेंट्स गो अप, विल द इशू गेट रिजॉल्व्ड? Absolutely, and Sushant, I feel they are quite interlinked also. Absolutely. Interdependent है, interlinked है. So as you said, अगर एक डाउन जाएगा तो बाकी डाउन जा सकते हैं, उसी तरह अगर एक ऊपर जाएगा तो बाकी भी ऊपर जाएंगे. I think it's excellent, you know. It's like your body, यार. It's like a car's body. ठीक है, अब वो कार्बोरेटर में गड़बड़ है, या फिर स्टीयरिंग व्हील खराब है, या फिर टायर चक्का खराब हुआ है, फट गया है, कुछ भी हो सकता है. इंजन तक तो पहुंचने की जरूरत नहीं है. मतलब एनीथिंग व्हिच गोज अमिस, द होल कार क्रैशेस यार. आपकी गाड़ी चलना बंद हो जाती है, वो चाहे छोटी सी चीज है. तो इट्स लाइक इंटीग्रेटेड है वो ऐसे है, वो ऐसा नहीं है कि एक भी चीज कम हो जाए तो उसका इम्पैक्ट आएगा लाइफ. तो
all your job is to focus on this, and this is what. So this is what we do. As I said, it's a 2.5 month long program where we just not just talk about this, but we actually handhold you in implementation of this. Sushant, just one. I don't know if it's the right time to ask question, but and through over to you all. We can spend the next. Okay, fantastic. But we can spend the next 15 minutes. Sure. So if you can remove this slide, I would like to take forward. I think it was Mrs. Satyaveer और सत्यावीर के जो कंप्यूटर से बोला था उन्होंने कि मेरे को डिसिप्लिन करना पड़ता है बच्चे को, और जब मैं बच्चे को डिसिप्लिन करता हूं तो ये चीजें ऊपर नीचे आ सकती हैं. तो मैं वो कैसे बैलेंस करूं कि मैं उसकी इन चीजों को भी प्रोटेक्ट कर सकूं और इनको उनकी जो नो लिमिटलेस है और जो उनके अंदर ये पावर है बच्चों में, जो फैंटास्टिक स्लाइड आई विल से, कि वो भी रहे और डिसिप्लिन भी रहे, बिकॉज डिसिप्लिन भी इंपॉर्टेंट है. तो हाउ कैन आई बैलेंस एज ए पेरेंट? तो एक और मिथ तोड़ दूं. मुझे मिथ तोड़ने में मजा आता है. बाय द वे, डज डिसिप्लिन एग्जिस्ट? और अगर डिसिप्लिन एग्जिस्ट करता है तो मेरा सवाल ये है, क्या सेल्फ डिसिप्लिन एग्जिस्ट करता है या मॉनिटर्ड डिसिप्लिन एग्जिस्ट करता है? I think I got the answer. Discipline doesn't exist, responsibility exists. And if you're responsible, you would be disciplined. तूने ना सारा ना 1 सेकंड के अंदर उड़ा दिया, बाकी को बोलने दिया कर. आंसर धीरे धीरे ले जा रहा था, तूने कहा ये ले आंसर. तो मेरा वो बल्ब जला ना, बल्ब जला एकदम. वाओ. वेट करना, बाकी लोगों को बोलने दे. Okay. So let's go slow. Okay, let's ignore what he said. Let me take you through the process again. देखो, हम बोलते हैं डिसिप्लिन करते हैं, हम डिसिप्लिन नहीं करते हैं. बाय द वे, हम फियर क्रिएट करते हैं. आप लोग कहीं पे भी देख लो, क्लास में बच्चे चीखते चिल्लाते कब नहीं है? जब टीचर होती है तब नहीं चिल्लाते, राइट? जैसी टीचर बाहर जाती है, सब लोग टेबलों के ऊपर भी जाते हैं, मस्ती करते हैं, लड़ाई करते हैं, सब कुछ हो रहा होता है ना. इमेजिन योर ओन टाइम, वी यूज्ड टू डू दैट. जैसे टीचर आती है, चुप हो जाते हैं. जैसे ही आप घर से बाहर जाते हो, वो सब उदंड चल रहा होता है घर में. जैसे आप आते हो, शांति बढ़ जाती है, टीवी बंद हो जाता है, पढ़ाई किताबें खुल जाती हैं, कुछ भी होता है. अरे जैसे आप उनके कमरे में जाते हो, उनका वो टॉगल करके ना गेम खेल रहे होते हैं, सडनली पढ़ाई करने लग जाते हैं. होता है ना? वो डिसिप्लिन नहीं है, वो फियर है. हम लोग रेड लाइट पे क्यों नहीं रुकते? इसलिए नहीं रुकते कि मेरी गाड़ी ठुक जाएगी, जाम में फंस जाएंगे. हम इसलिए रुकते हैं कि मेरे को चालान हो जाए. तो हमने बचपन से उनको डिसिप्लिन नहीं सिखाया, हमने डर सिखाया. मतलब हम लोग, मैंने ये नोटिस किया, लोग मतलब तब तक मास्क नहीं पहनते थे कोविड में जब तक 2000 रुपए का फाइन नहीं आया. मैंने कहा यार, अपनी लाइफ इंपॉर्टेंट है यार. 2000 रुपए, मतलब मुझे अपनी लाइफ बचाने के लिए दूसरे को 2000 रुपए देने पड़ रहे हैं कि मेरे को पकड़ की मेरे को मेरी लाइफ इंपॉर्टेंट है. अरे तो हम बचपन से सिखा क्या रहे हैं? हम डिसिप्लिन नहीं सिखा रहे, हम फियर सिखा रहे हैं. और फियर तब तक रहेगा जब तक इंसान सामने खड़ा रहेगा, वो उड़ जाएगा. तो डिसिप्लिन इज ओनली अबाउट सेल्फ, इज ओनली अबाउट रिस्पॉन्सिबल. जिस दिन, जैसे मैंने आपको अमन का एग्जांपल लिया था, तो अमन ने ना जैसे बोला कि मेरे को, उसकी एक और स्टोरी है थोड़ी सी. जब वो 9th में मेरे पास आया कि मेरे को पायलट बनना है, तो साथ ही साथ बोलता है कि मुझे ना साइंस नहीं पढ़नी है. मैंने कहा अच्छा रिसर्च कर. वो आया कि यार साइंस, अब पायलट बनने के लिए मुझे फिजिक्स में और मैथ्स में, मैथ दोनों लेनी पड़ेंगी. उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 55% की, लेकिन मुझे साइंस नहीं पढ़नी है. तो भाई साहब स्कूल गए, कॉमर्स लेके आ गए और फिजिक्स को 6th सब्जेक्ट ले लिया. तो मैथ्स तो कॉमर्स में है, फिजिक्स में 6th में अलग से पढ़ लूंगा, केमिस्ट्री बायो पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने ली नहीं. तो स्कूल से फोन आया कि डू यू नो योर चाइल्ड हैज डन दिस. सेड यार यस. कहते वो कैसे पढ़ेगा? मैंने कहा मुझे क्या पता. कहते क्योंकि जब हमारे स्कूल में तो वो कॉमर्स की क्लासेस में बैठेगा, तो फिजिक्स की क्लासेस तो मिस होंगी, वो प्रैक्टिकल भी नहीं कर पाएगा, कैसे करेगा? ट्यूशंस करोगे? मैंने कहा नहीं, मैं आई डोंट बिलीव इन ट्यूशंस. ट्यूशन तो जाएगा नहीं, उसको भी क्लैरिटी है कि वो ट्यूशन में नहीं जाएगा. जस्ट इमेजिन ही, एंड ही इज नॉट एक्सेप्शनल. ऐसा नहीं कोई, मतलब आप उसको देखो, ही इज एज नॉर्मल, ही इज नॉट अ ब्राइट, मतलब कि यार वो टॉपर है, वो 80% वाला बंदा है. कहता इतना ही चाहिए मुझे. तो एंटायर 11th एंड एंटायर 12th फिजिक्स ही डिड ऑन हिज ओन. नो वन टॉट हिम एट ऑल. और 12th में 76% आ गया. ऐसे ही 77 आ गए, लुढ़कते पटकते, कभी नीचे भी गिरा, ऊपर भी गिरा, बट खुद किया. क्यों? क्योंकि उसको पायलट बनना. उसको पता था अगर मैंने नहीं किया तो पायलट छूट जाएगा. एंड दिस इज व्हाट इज माय लाइफ. तो डिसिप्लिन डज नॉट कम
responsibility comes, and responsibility comes after purpose. आप ऑफिस क्यों जाते हो, मुझे ये काम क्यों करना है, वो जब बड़ा हो जाता है तब डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आ जाता है. Are you getting it? Bigger sorry, just interrupting related to what you have said as an example of your son. For example, let me say कि उन्होंने physics choose किया as a sixth subject, and then he might have had a difficulty in learning it and then applying it to wherever it is required. So let's see, if I am a parent and then I say that, guide him to say that, okay, if you want to become a pilot, physics आप sixth subject मत लीजिए, third subject ले लीजिए और one of the primary subject ले लीजिए, so that you learn it properly, and this could lead you to have a better chance at becoming a pilot, which is your ambition. So I'm saying, what is our role in pushing in the right direction? जैसे आपने कहा कि push and exposure, तो उसमें push and exposure in the right direction कितना important है? सर, आपको खराब लगेगा लेकिन मैं सच बोलूंगा विक्रम, ये डायरेक्शन आपकी होगी या उसकी होगी? डायरेक्शन उनकी है, बट वी आर गाइडिंग देम टू से दिस डायरेक्शन. एक सेकंड रुको विक्रम, एकदम आंसर मत करो, 2 मिनट सोच के आंसर करो. ये डायरेक्शन, yeah, so what I'm saying is, it may be that the difference would be that he has not chosen it, विक्रम, but he is not chosen. रुक जाओ, बट पे मत जाओ. Sorry, he has not chosen it, right? हाँ, he has not chosen. एक सेकंड रुको, धीरे. अगर उसने चूज नहीं किया तो आपने चूज किया. अगर आपने चूज किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई? हाँ, ओके, अग्रीड, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एग्री. अरे धीरे अग्री तो अभी ये खुलेगा ना ध्यान से, ये मैं आपको लेके जा रहा हूं. श्योर, आई एम ओपन. तो जैसे ही मैंने चॉइस करी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई. ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई तो उसको करवाएगा कौन? नहीं, फाइन, आई गॉट इट. आप, अगर आप कराओगे तो फिर आप पीछे पड़ने लग जाओगे और फिर वो डिसिप्लिन आ जाएगा. No, sir, the point is, so okay, got this, agreed, but the point is that you are choosing something for him. I'm sure the other participants would also might have this feeling. Absolutely. That he wants to become a pilot, but then you are guiding him that beta ye nahi, agar aap ye karenge, then you have a better chance of becoming a pilot than doing this. Now I'm saying is then guiding, okay, then aap jo main kaha jo रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी सी हमारी ज्यादा हो जाएगी. थोड़ी सी नहीं सर, पूरी. हाँ, मुझे लगता है मे बी. एक आपको आई एग्री बट स्टिल फील एक और चीज बता दूं. इज इट वर्थ पुशिंग इन द राइट डायरेक्शन? अरे विक्रम, एक चीज और बता दूं आपको. रिस्पॉन्सिबिलिटी या 100% होती है या 0 होती है? ये ना थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूं नहीं होता. आपको ना, आप बिजनेस चलाते होंगे, जॉब करते होंगे, आपके कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं. हाँ, रिपोर्ट करते होंगे ना, तो अब नोटिस करना, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप काम देते हो और आप भूल जाते हो और वो काम अपने आप हो जाता है. रुको. और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप पिछले 10 साल से पीछे पड़े हुए हो, और जब तक आप पीछे नहीं पड़ते तब तक काम नहीं होता. जब तक आप उनको, अरे काम हो गया, हाँ सर अभी करता हूँ, मतलब वो जब तक आप रिमाइंडर्स नहीं देते और पीछे नहीं पड़ते तब तक वो काम होता ही नहीं. नहीं, कुछ लोग सर इसमें ऐसे भी होते हैं जिनको काम मालूम नहीं है कैसे करना है, बट यू हैव टू गाइड देम, गिव देम अ वे कि बस इस डायरेक्शन में जाओगे तो काम हो जाएगा. थोड़ा सा उनको थोड़ा सा सही दिशा दिखानी होती है, फिर वो कर लेते हैं. सर एक काम करो, आप वही करते हो. तो आप ना, जो ये लास्ट मिथ मैंने ब्रेक किया है ना, आप उस पर पहुंच नहीं पाए. आपने सुशांत सर, एक क्वेश्चन है एक करके आ रहा हूँ, एक करके. और मैं ना ये चीज बोल रहा हूँ, आपको एक चीज बोलता हूँ. विक्रम, आपका बेटा है बेटी है? I have a son. I have 2 sons. You have 2 sons. What's his name? Adit is 17 and Advik is 11. तो एक के ऊपर चलते हैं, आदित्य पे चलते हैं, एक ही नाम ले लेते हैं. बाकी मैंने क्वेश्चन विक्रम से पूछ रहा हूँ, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, और अपनी ना अपने ब्रेन में जो चलेगा वो नोटिस करना. मैं बोलूं विक्रम, is your child a son? क्या बेटा है? कैसा लग रहा है सवाल सुन के?
No, nothing. It's just that you are curious to know whether he's a son or a daughter. मतलब वो तो आपने पहले बता दिया मुझे, मैं उसके बाद पता है आपका बेटा है, he's a male. कैसा लग रहा है? मतलब अजीब सा लग रहा है, क्यों? I don't have that. अजीब लग रहा है कि भाई अभी तो बताया मेरा बेटा है, फिर क्यों बोल रहा है? बकवास कर रहा है, मतलब अभी तो बोल रहा हूँ बेटा है, तो बोल रहा है मेल है। या ना अटपटा सा लग रहा है, क्या बोल रहा है, आगे बोलना। ओके हाँ, ये चीज आ रही है, सबको आ रही होगी। अगला सवाल पूछना हूँ, उसका सिचुएशन बताना। विक्रम, आद्विक इज नो लिमिट, क्या ये दोनों इक्वल हैं? दोनों सवाल आपके दिमाग में दोनों इक्वल सुनाई दिए? सच बोलना। हाँ, second one is more powerful. No, second one is not yet accepted. उतना अटपटा नहीं लगा जितना पहला सवाल लगा। अरे हाँ, आगे बोलना, मैं कह रहा हूँ नो लिमिट है। बाय द वे दोनों उसी लेवल के सच, लेकिन हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। तो जब तक आप इस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे ना, आपका ये सवाल कि मुझे गाइड करना जरूरी है। विक्रम, एक सवाल पूछूं आपसे, और बाय द वे सबसे पूछूं, आप गाइड कर रहे हो, कब तक करोगे? Whenever it's required. कब तक रिक्वायर्ड नहीं होगा? Maybe till I'm there or till he's there. So you're saying till I'm there, and don't mind this question. Okay, this is a question I asked myself when Aman was born. I asked myself a question: will I be there tomorrow to support him? Hey, it's not support. एक सेकंड विक्रम, एक सेकंड यार, सुन लो पहले क्वेश्चन, रुको। Will I be there tomorrow? इसका जवाब है मेरे पास या नहीं? नहीं है। So the answer was I don't know. Correct. I go tomorrow. Where do I want to leave him? That is the question I asked. इसकी सारी जो रिसर्च है ना, वो इस क्वेश्चन से निकली थी कि यार मैं उसको कहाँ छोड़ना चाहता हूँ, इस एरिया में, कि यार बाप चला गया जल्दी, अब मैं अकेले कैसे जीऊं? क्या बाप चला गया जल्दी, देखो बाप जाएगा तो वो इमोशनल, वो फिजिकल डैमेज और वो जो वो आएगा, वो तो आएगा, वो तो उसको हैंडल करना ही पड़ेगा, चाहे मैं 50 साल में मरूं या 100 साल में मरूं, वो तो नॉर्मल है, वो तो होगा। बट वेयर डू आई वांट हिम टू से दैट ही इज गॉन एंड ही इज मेड मी capable, responsible enough to handle my life? Agreed. I got your point. So when would you do that? Agreed, anytime. I agree. Anytime when? Now, I would say now. The answer is right now. Because मुझे नहीं पता कि कल मेरे को ये भी नहीं पता मैं आज रात को सोऊंगा तो सुबह उठूंगा नहीं उठूंगा, मैं गारंटी नहीं ले सकता। Say, change is a process, not an event, right? And here we are talking about changing our behavior towards parenting. So it will be a process. It will take time. And I can only share what Sushant said. I can totally second that because I did the same with my son. My son also did certain things which were unconventional and things, but then ultimately, I felt, whatever he's deciding, I'm going to support him and he's responsible for his decisions. It works. We'll talk more about this, guys. What I'm going to do, I'm going to quickly, 4-5, after this session, 4-5 quick learning of this session or actionable. We'll make a small summary and share on the group for all of you. I'll also share Sushant, which is going to send me the links so that in case you want to take this journey forward with him, you can take this forward. I can only say I'm a happy client of Sushant. So, so I got benefited out of many things. You can also get benefit if you want. Thank you very much, Sushant, for taking out this time. And I'm sure, we all picked up something or the other for ourselves because as Sushant said, each child is different, each parent is different, सबकी अलग-अलग problems होती हैं, सबके अलग-अलग solution होते हैं. Today also I picked up more things with us because every time we listen to somebody as learned as Sushant, an expert in a particular field, we always get something out of it. So let's say thank you to Sushant because we have overshot our time. If I would have known Sushant, I would have kept 2.5 hours. But it was a very nice session, Sushant. Yes. Thank you so much, Sushant, and thank you guys, everybody. Next Saturday we have another session which is on digital brand, social media marketing, and all that stuff by Nitin Soni. I'll talk more about that right now. Thank you very much, Sushant. It was a pleasure to have you here. Thank you, sir. Thank you, Asim. Thank you. Bye, guys. Thank you, Sushant, and Asim. Thank you, everyone. Thank you.